Narcotic Drug Substances and Psychotropic Substances Act amla Act 1985 law molentu India higi emring hogo takama opium ganja brown sugar heroin ok merakat angamdu charas napanam gadige adu emring humne hogo donam bacin kadu ok bej bacin dengan kadu ok hunam cikadu emring humne ngunu ngosor pemil hok punishment almost section 10 years with 1 lakh rupees fine everywhere yaar macha posto punishment rigorous imprisonment do ogo everywhere yaar 20 years and 2 lakhs la fine jidu court lo convict nang kar ko saja eklega humne saja yo ya kama ngun anabat humne ngo kerlosin muna meeting lo discuss riba amrin district administration ok police nguno control group like do amla like ma anabat government na especially anabat parents kata mentana amrin ma awat control nam laga ba ngunu anak lo responsible maximum kadam la kadu rin ma ngun anak kata generally hamdu do awa yolin do mugratir ajina ye na bere egan kache lam ma do free tolat amrin ma tolayo juga awat dam dikuna anak kata awe fight hiku lagi mainly especially anak kata awar tudu mainla muyam mera jendo ko oke yadi homoi lobre nendu ko yadi lobre aku ko egam allu kyar hip lagi emaram donam te tikum dabeng na hum lab kulam na kokilo be practice la re mum edik la re na kar ko ne mun motu lak mara lepara da higi nyummo ke district lo tiru lakin ngar lepara da higi population base lam population ya lo komti re akhir ko tum gay na orang percentage maj hai do na ke emri me gakchin maji biji train le ka kana maj rai ege jaga dragi biji emri me ja train le rai rokom nun kaka to ka ja gunu hilo homi young age unnam chanyana heart attack ok suicidal rate maj hai higi kakara makala maram kogo abuse of angam almost 60-70% gonna emrin ma heglo drug don gade drug lan gade heglo mazbe increase do hegna case ko RT road traffic accident lo suicidal rate lo himun yoba him ngun prevent lardi awareness create lardi emrom big rate ka desin ma down ra emrom ngaka mane hilo nunun anganwadi kata gola asa kata gola ke bentuk ma hilo unga suba awareness lo nun buku mereka tu ka ngunem waktu ngun him kamen grassroots level of ngun lagi nun ayu hilo kalkan kosong tin dos doraga mo ko alkumadu ngok awam yele chin alma gatka yechi mamadu oke ngok awu alma beram ngok nie manage ngok family kusia ngok ay kusia mayo ka emma anganwadi ka telachin asa ka telachin nunu ayu dolo lo ya nesila alung bi polo emma hok rule chin ka duja hexachin desmisa simenga punishment chin ka emma dolo lo ana bomchin menyok chot ka awareness chot ka oke bolu chimenta rule chin ka provision ka na ka punishment lo emma maram ija rin ka daglega ba bulam ni rehefin hilla allak sikadu yadgo reheblochin inya potba rehebitre lati regurdu emren ma hungunu bisa yedi ija o involve maduna omega dan ija munuk sai doka awareness di toma ekdom totally akal manam cheme pelai
ngo ake ko alu menna nu anu tangap toka nibak gadel nge ko kopya toka bulu schooling drum tin awu mat bolo to pege bota imingala ok ayom bok namlo awa dudu yugdu kuna ba yumar bedroom makala abula chin awa yol batu ko noyol la rako korum di logo mo awa yol re ngage ko mla mobile ka mata ko adum ije tu mobile ka ko aw chi ba ngam noyol la rako noyol mo schooling du re mare schooling tra chi dreseng ka hibu lo dugu ek ngunu machi ko lege an apo mo ka awa yo be gunne yo ke na bre mane berikutnya agar lo homo Kristen lagi, awal macam kuma, awal dos baca aku, baru baca aku, buksan lo do kuma, problem itu, no awal tu alber mat, no awal alber tu ngiela, bosu kada alber nungcim, disbal, alber nam lo rigre tu, oke, dulu lo kada nut edwas gila, nak moko jal matu, drag di polo, kakak tu no awal drag di polo jal, dia sisa cemengka, no murko ko nyamre. Nomor tu top up, mobile top up ko, ekko, sarga dah ko dole so, contribution, nomor ko nas buka user kabel, nun समाज की माजी बालना को नीग उम्र का माता का कुल ड्रग विनाश लापरवाही में बहुत बढ़ गया है। तो सचमुच तो ड्रग्स का जो विनाश से बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में, लेकिन इसको एड्रेस कैसे करेगा हम लोग, किसको पकड़ने से, कैसे पकड़ने से इसको हम लोग बोलता है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ड्रग्स का मामला में प्रिवेंशन इज दी ओनली क्योर। मतलब एक बार अगर एडिक्ट हो गया तो उसको मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो ये जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने भी माँ पिताजी ने एक्सपीरियंस किया, ऐसे सोसाइटी ने एक्सपीरियंस किया होगा, सबको मालूम है वो रिलैप्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। तो इसमें हमारा यही कोशिश रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, हमारा जो यंग जनरेशन जो है, ये ड्रग्स का उसमें पड़े ही ना शुरू से ही ना। तो इसमें हम लोग का रोल सबसे ज़्यादा, एज ए पेरेंट हम लोग का रोल सबसे ज़्यादा है। अभी जो ड्रग्स एब्यूज़ हो चुका है उसको बुला के हम समझाने से वो समझने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो अभी माँ पिताजी का बात नहीं सुनेगा, डॉक्टर का बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ड्रग्स उसका ऊपर हावी हो चुका है। तो हम सब का यही मुहिम रहना चाहिए कि जो अभी हमारा एडोलेसेंट है, जो टीनेजर है, जिसका विल पावर अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा है और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या एक्टिविटी जो सोसाइटी को देखते हुए वो लोग जो सीख रहा है उसको हम सही रास्ता में ले जा सकना चाहिए। अगर एक एज ही होता है जैसे ड्रग्स एब्यूज होने का भी, आपका जैसे एडोलेसेंस से लेके कॉलेज लाइफ तक, उस बीच में हम लोग अगर अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा पाया ना, तो उसके बाद आप उसको ड्रग्स देने से भी वो नहीं पिएगा, नहीं लेगा, क्योंकि वो समझदार हो चुका होगा तब तक। तो उसी विषय में हम थोड़ा बोलने के लिए आज हम आप सब आया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। एक्चुअली हम सब, आप सब एक पेरेंट होने का, आप सब एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स भी है, और आप लोग जैसे सोसाइटी को दोनों तो आप लोग ईयर एंड आई होना है। हम लोग जो आज बताएगा जैसे, तो आप लोग दूसरा को भी ऐसे शेयर कर पाना चाहिए। ड्रग्स पे हमेशा यही रहना चाहिए, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। हम लोग अर्ली एज में हमेशा बता सकना चाहिए। नारकोटिक एनिमस एंड फेलोशिप ग्रुप हमने फॉर्म किया था यहाँ पे कुछ महीना पहले। तो तब मेरे पास एक लड़का से मैंने शुरू किया था, आज मेरे पास 11 लड़का है। वो लोग रिहैब जाने का बाद, रिहैब में उन लोग क्या क्या करता है वहाँ में, वही चीज़ को हम लोग यहाँ में, मैं डीसी मैडम को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डीसी मैडम भी एक रूम दिया था, इससे पहले हम लोग घर में, एक छोटा सा घर में हम लोग ट्राई किया था इसको। तो डीसी मैडम जब रूम दिया था, हम लोग अभी डीसी मैडम का रूम में लड़का लोगों को बुलाता है, नारकोटिक एनिमस फेलोशिप ग्रुप बोल के। तो कोई को सोचता है फेलोशिप बोलने से क्रिश्चियनिटी सोचता है। मैं आपको बता दूं, फेलोशिप ग्रुप ऑफ पीपल्स को बोलता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इनोवेटिव आइडिया निकालने के लिए हम लोग करता है इसको। तो आप रिहैब से जब आ जाएगा, तो मेरा लड़का लोग जितना है 11 लड़का, ये सब ड्रग्स लेने वाला है। ड्रग्स लेके उन लोग, आज से हम ड्रग्स को छोड़ देगा, क्योंकि वो लोग रिहैब से वापस आके वही चीज़ को लोग आपस में दोस्त को मिला के, चलो हम लोग जो वहाँ क्या था, यहाँ में भी वही हम लोग करके रहने से हम ड्रग्स को दोबारा नहीं छुएगा बोलते, वो लोग वहाँ पे रह के उन लोग वही चीज़ करता है जो रिहैब सेंटर में करता था। तो मेरा तो टारगेट यही है कि बाजार में अगर हम एक साल में भी 2 लड़का को ड्रग्स से अगर हम निकाल सकते हैं, दैट माय अचीवमेंट एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी ऑफ बाजार। हम ये सोचते हैं। तो इसलिए, और उसमें भी ऐसा है आपका
अभी लड़का लोगों को क्या करेगा अभी फिर जैसे अभी मेरा फेलोशिप में तो लड़का आ गया है, तो आने का अभी क्या करेगा, उनका फ्यूचर को भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का डॉक्टर रीना से भी मैंने बात किया था कि मैं बोला कि हमने नार्कोटिक एनोमस फेलोशिप ग्रुप ड्रग्स का जो रिलेटेड है, बच्चा को ड्रग्स नहीं लेने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो अभी आने वाला फ्यूचर में भी तो शादी करेगा फिर तो उसका फैमिली के लिए भी सोचना पड़ेगा सर बोला। तो वो हमको बोला है कि आप 14 मंथ यानी कि 1 साल 2 महीना जो लड़का आपका साथ सही से रह गया उसका नाम को हमको दे दीजिएगा, उसको हम लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजेगा। वो ट्रेनिंग बाहर जाएगा, बाहर जाने का बाद फिर हमारा यहाँ पे एक अच्छा स्कीम भी होता है, मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना भी है यहाँ पे। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी खुद ही चेयरमैन है उसका, तो उससे हमने बात किया था, तो वो बोला कि उसका तरफ से जो ट्रेनिंग करके वापस आएगा फाइनेंशियल कुछ असिस्टेंस देगा, उसको हेल्प करेगा कि ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके। ये भी एक अच्छा मौका है। तो जो लड़का लोग मेरा फेलोशिप में रह रहा है, मैं उन लोगों को भी ये हाथ जोड़ के अपील करता है, बच्चा का जैसे उसमें समझाता हूँ कि आप 14 मंथ्स क्लियर रह लीजिएगा। रहने के बाद मैं आपके नाम को कैपिटल आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हेल्थ का है हमारा रीना सर का, उधर मैं भेज दूंगा। भेजने के बाद आपको सिलेक्शन करके बाहर स्टेट में कहीं भी आप फील्ड में आप जो फील्ड में आप इंटरेस्टेड है वो फील्ड में आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा। फिर पैसा का मामला था, पैसा तो आपको मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना की तरफ से थोड़ा दे देगा। ये भी ऐसे उनसे क्या होगा ना, सस्टेन हो जाएगा। पहले एक ड्रग पेडलर को शायद फ़ोन करने के लिए, लोकेट करने के लिए टाइम लगता था होगा, आजकल जो है एक फ़ोन में ड्रग पेडलर को भी मिल जाएगा। तो आज का जो दिन हम लोग यहाँ एकत्रित हुआ है वो आप सोचिए, अरुणाचल सरकार जो है आज 20 करोड़ रखा है ये नशा से आज़ादी वाला एक प्रदेश के लिए। जैसे कारगे भाई ने बताया, सीएम मुख्यमंत्री जो हम लोग का प्रोग्राम है उसका मुख्यमंत्री प्रोग्राम के अंदर में नशा में जो आदमी लोग लीन रहता है उनका कम बैक के लिए जो पैसा रखता है 20 करोड़। तो इमेजिन हम लोग का बजट में आज कभी दिन इतना ज़्यादा पैसा जरूरत नहीं होना था, आज का दिन में हमारा प्रदेश में 20 करोड़ का जरूरत हो रहा है हम लोग का बच्चा लोग को रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो कैसे हो गया उसको भी सोचना हम लोग के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला पहले डॉर्मेट्रीज था, डॉर्मेट्रीज के बाद आ गया हम लोग का स्कूल्स, है ना, स्कूल्स आ गया। स्कूल्स में टीचर लोग जो पढ़ाएगा वही मतलब टीचर लोग जितना समय बच्चा लोग टीचर लोग का पास में है वो टीचर लोग का कंट्रोल में आप लोग भी रहने देना है। उसमें भी आप लोग नहीं बोलना है मेरा बच्चा वो उन लोग को अच्छा से करने देना है। क्योंकि ये जो बीमारी है जो ड्रग का बा सब्सटेंस अब्यूज एनी अदर सब्सटेंस, डेनराइट, पहले डेनराइट क्या है हम लोग को पता ही नहीं है, फेंसिडिल क्या है हम लोग को पता ही नहीं है। इजा ना चेंदू है माँ लोग आना लोग डेनराइट बोल के भी कोई चीज़ होता है जिसको लेके सुनता है, उपाय नहीं मिलने से बच्चा लोग केरोसिन को भी सुनता है, बोलता है मैं बता दूँ मुनू भाई ये तो हम लोग तो सुनने वाला चीज़ तो बोल के मालूम नहीं था। तो इजाना पता चल रहा है कि बच्चा लोग उसको इस तरीक़ा से अडॉप्ट कर रहा है। तो वो जो है जो हमारा समाज में था ही नहीं, अभी नया से आया, तो नया से जब आता है तो उसका इलाज भी तो नया ही तो होगा ना, है कि नहीं। तो जब भी इस तरीक़ा से अभी आ गया सिर्फ ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज़ ने मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ गया, आपका सुइसाइडल हो जाता है आदमी, डिप्रेशन में चला जाता है। इजाचिन नुनू मेंका है, नुनू बाम बस्ती में भी डिप्रेशन वाला है। तो डिप्रेशन, सुइसाइड, सब्सटेंस अब्यूज़ में ज़्यादा ओवरडोज, ये सब को टैकल करने के लिए पहले क्यों नहीं हुआ उसका अगमदंगो हेम्मा वो जून महीना में आया था। जून महीना में ही हम लोग नशा से आज़ादी पखवाड़ा हम लोग किया था, बहुत बड़ा से किया था, 15 दिन चला था। हम लोग इतना सबका साथ हम लोग मीटिंग कर के कैनेडी आओ को भी आलो से ला के उन्होंने भी अपना अपना बारे में, अपना ऑर्गेनाइजेशन का बारे में और अपना एक्सपीरियंस का बारे में बताया। वो सब हम लोग DRCHO सर भी आया और मेडिकल डिपार्टमेंट से भी उस समय डॉक्टर खमदाकी आया था, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, सब्सटेंस अब्यूज़ का ऊपर बात करने के लिए। अभी बाम बस्ती में ऑलरेडी शुरू हो गया, आप लोग पता है। तो ये ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, हम लोग यहाँ में नहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग इसका ऊपर काम कर चुका है। यहाँ में हम लोग आके देखा है कि अरे ये तो मतलब कहानी तो नहीं है लेकिन सब्सटेंस अब्यूज़ तो इतना है, तो सब्सटेंस अब्यूज़ तो ठीक नहीं है बोल के हम लोगों ने मिल के
एक विद द सपोर्ट ऑफ डीएमओ सर हम लोगों ने एक काउंसलिंग सेंटर वहाँ में मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज से जो आदमी पीड़ित होगा उसके लिए कुछ तकलीफ है, ओवरडोज हो रहा है, कुछ हो रहा है, माथा में कुछ हो रहा है, बा ऐसे भी दुख है, वो सब के लिए एक काउंसलिंग रूम बना के रखा है। एक नहीं 2 रूम। आप लोग आशा लोग मालूम होना चाहिए, आशा लोग को पता है कि नहीं, आप लोग देखा है कि नहीं, वो काउंसलिंग सेंटर बना के रख के वो लास्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इजांगुनु मार्च का लास्ट में आ गया, करीब 10 महीना। दुख का बात क्या है मालूम है, इस 10 महीना में हम लोगों ने बहुत बच्चा खोया है। कोई सुइसाइड से, कोई सब्सटेंस अब्यूज होके, ओवरडोज होके, है ना, कोई तो ज़्यादा पी के एक्सीडेंट हो गया, उसका भी हाथ पैर कट गया, इस तरीका का। हालांकि हम लोगों ने वो प्रोविजन बना के रखा है, वहाँ में वो काउंसलिंग सेंटर है, बिकॉज सब्सटेंस अब्यूज इज अ डिजीज। ये आदत नहीं है, ये डिजीज है, बीमार है। हम लोग इसको डिजीज बोल के नहीं समझ के, ये शर्म का कुछ बात, उसका परिवार का अपना बात, न्यान्या होने से भी कुछ नहीं बोलेगा, मोई होने से भी कुछ नहीं बोलेगा, हो जाएगा। अच्छा, माँ पिताजी लोग तो टेंशन में है ही है, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो एज अ सपोर्ट सिस्टम तुम भी तो थोड़ा जानने वाला, आप लोग का जैसा जानने वाला, थोड़ा शेयर करना है ना। अरे क्या हो गया, का नाम, वो बेटा को ऐसे गलत कंपनी में देखा है, दे थोड़ा आप लोग बात करके देखा है क्या? वो सब यहाँ नहीं हो रहा है। दैट हैंड होल्डिंग इज नॉट देयर, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है जो हम लोग दिखाई दिया ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग तो चलो अलग कहानी है, APWWS भी कोशिश करता है, लेकिन फैमिली में जाने के लिए हिचकिचाहट है। तो उसमें आप लोगों का रोल, आप लोगों को आशा और आंगनबाड़ी को हो गोगनाम लगा भाई। आज का दिन में मकते श्रीपीओ सर ने बोला है कि आप लोग औरत है इसीलिए बुलाया, हाँ वो भी है, औरत है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट औरत है। वो बोलता है ना, यू टीच, एक बच्चा को पढ़ाएगा तो एक ही बच्चा को पढ़ा रहा है, लेकिन एक माँ को पढ़ाएगा तो एक समाज को पढ़ा रहा है। मतलब माँ जो इतना फैला देता है मैंने, तो ये द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। जो हाथ, जो माँ का जो हाथ है, जो बच्चा को ऐसे झूलना में झूलता है, वही दुनिया पर कायम रहता है, मतलब वही दुनिया को रूल करता है। उसका मतलब किस तरीका का बच्चा को हम बड़ा करेगा, उसी तरीका बच्चा तो समाज में होके आएगा, कल होके आएगा, उसी में से तो राजा बनेगा। जैसे हम लोग का बीच में हम लोग का अपना ऑनरेबल MLA सर है, उनका अंदर में कुछ भी अवगुण ये सब कुछ नहीं है। ना वो सिगरेट लेता है, ना वो ड्रग्स लेता है ना, ना वो कोका पीता है, वो सब कुछ नहीं करता है। कहीं ना कहीं उनका माँ पिताजी का योगदान होगा। सर तो बोलते हैं उनका टीचर का योगदान है। उनका टीचर ने उनको बोला था कि आपका बच्चा, मैंने ट्राइबल बच्चा लोग तो आसाम में जब पढ़ता था, सर को बोला था, बोलता है उनका टीचर है कि आप जो है जब घर जाएगा छुट्टी में फिर पोका पिएगा होगा। तो सर ने उस समय में ऑनरेबल सर ने उनको अपना गुरु को वादा किया था कि वो नहीं पिएगा बोल के। तो उस वजह से आज वो एक माने उनका जो समय है एटलीस्ट निशा में तो नहीं जा रहा है, जितना भी जो समय है परोपकार के लिए, समाज का काम के लिए जा रहा है नो। तो एक नशा करने वाला आदमी का टाइम कैसे बीतता है और एक नशा नहीं करने वाला आदमी का टाइम कैसे बीतता है, वो तो आराम से दिखाई दे रहा है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ काम, जितना भी आप यहाँ दिखाई दे रहा है, जितना भी यहाँ बैठा है, समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। पोका पी के तो नहीं बैठ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी इसमें पोका जब हम लोग का समाज में ऑलरेडी है, सब्सटेंस अब्यूज़ जब आ गया, तो इसमें आज आप लोग को हम एक प्रोफेशन हिसाब से बुलाया है। आप लोगों को जो हम लोग रिक्वेस्ट किया एज ए आशा, एज ए आंगनवाड़ी वर्कर, औरत हाँ यस, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाकी लोग को तो हम लोग नहीं बुलाया, बाकी औरत लोग को तो नहीं बुलाया, सिर्फ आशा और आंगनवाड़ी। क्यों? आशा का रोल, आप लोग का खुद का रोल आप लोग मालूम है ना, क्या क्या आप लोग को करना होता है आशा का हेल्थ प्रोग्राम में, हेल्थ एंड वेलनेस में, आप लोग को पता है क्या क्या करना होता है। और आंगनवाड़ी भी आपको पता है आप लोग को क्या क्या करना होता है। तो आज जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वो सजेता आंगनवाड़ी वर्कर्स लोग मालूम है, सजेता डिपार्टमेंट, ICDS और सजेता का तरफ से हम लोग का सपोर्ट से आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो क्योंकि ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में, ICDS का चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में आ जाता है कि
समाज को नशा और खराब आदत से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकता है, उसमें आशा का रोल होना है, आंगनबाड़ी का रोल होना है।